गल्फ में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात हाज़िर पर मबनी प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप दियार गैर में पाकिस्तानियों के कैसे गुजरते शब रोज, वो वॉइस ऑफ ओवरसीज कम्युनिटी हर जुमेरात रात 12:30 पर और हर जुमा दिन 3:30 पर देख सकेंगे। जनाब कारी ज़फ़ीर हसन कादरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم سرپرست اعلیٰ جناب چودھری غلام سرور صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب چودھری غلام سرور۔ ناظرین، کویت کے مقامی ہوٹل میں گزشتہ دنوں پروان میگزین کے دوبارہ اجرا کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں کویت کی مختلف سماجی ثقافتی شخصیات نے شرکت کی۔ آئیے آپ بھی دیکھیں۔ بیت رہے ہیں، ہم ٹائم گزار رہے ہیں، یہ ہماری یادیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے ہمارے پاس، ہم مل بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بڑی بات ہے آج کے دور میں۔ ہم بالکل تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں ملک کے چلے آ رہے ہیں، کوئی آدمی یہاں پر خوش نہیں ہے، کوئی پاکستانی آج کل کوئی خوش نظر نہیں آ رہا۔ بولتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن ہمارے ہنسنے میں بولنے میں بناوٹ ہوتی ہے، کیونکہ آدمی دل سے خوش نہیں ہے۔ دل کی آواز نکالنے کے لیے ہم نے سوچا کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، کوئی بات چیت کی جائے، کسی کو سنا جائے، کسی کو سنایا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے چھوٹا سا کام شروع کیا، جو آج ہم بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں، ماشاءاللہ سارے اچھے پڑھے لکھے طبقے تعلق ہے ہم لوگوں کا، اور ساری باتیں جو سامنے۔ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں۔ آئیے ناظرین، آج ہم اپنی ملاقات کویت میں موجود تحریک انصاف کے صدر جناب ارشد نعیم چودھری سے کراتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں طارق صاحب، آپ تشریف لائے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے کیا، پاکستان تحریک انصاف دراصل ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ جو پاکستان بناتے وقت ایک نظریہ آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ جو ضرورت تھی پاکستان بنانے کے لیے، تو اس نظریے نے اتنا وہ پروان چڑھ گیا۔ اسی طرح آج سے 62-63 سال پہلے پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا، اس کے اوپر عمل کیا تو پاکستان قائم ہو گیا۔ اب ان 62-63 سالوں میں جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، اس کو مد نظر سے اب ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مینٹین کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے بنانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کی مینٹیننس میں ہمارا کردار نہ ہو۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے یہ نظریہ دیا ہے کہ جس انصاف، انسانیت اور خودداری، جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں انسانیت جنم لیتی ہے، اور جس معاشرے میں انسان بستے ہوں وہاں خودداری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں انصاف، انسانیت اور خودداری کا ایک سلوگن دیا ہے، ایک نعرہ دیا ہے، اور یہ تبدیلی کا ایک نعرہ ہے۔ کویت کے اندر 2008 میں جب مشرف نے افتخار چودھری کو سیک کیا تھا، تو اس وقت
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हमने बहाल कराना है। अब ये जब उन्होंने बात की तो पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम में शायद वो वाहिद आवाज़ थी जिसने कहा था कि हमें इंसाफ के लिए बाहर निकलना और इंसाफ को बहाल करना है। सुप्रीम पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को इंसाफ चाहिए, ये था वो बात जिसने मुझे बहुत क्लिक किया। हालांकि इससे पहले मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जब इमरान खान ने ये बात की और इमरान खान के ऊपर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये शख्स क्या बातें कर रहा है, ये कैसे हो सकता है कि जनरल मुशर्रफ जो डिक्टेटर है, हुकूमत में है, और उसके साथ हवारी उसके चेले बैठे हुए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी बहाल हो। लेकिन इमरान खान की इस बात, चूँकि मेरे दिल की भी आवाज़ थी, तो हमने भी कोशिश की हम इमरान खान का साथ दें, कोई और साथ दे या ना दे। मैंने ये सोचा था कि कुवैत के अंदर कोई और मेरे साथ खड़ा होता या ना हो, लेकिन मैंने इमरान खान के साथ खड़ा होना, तो मैंने अपना इस तहरीक का आगाज़ किया। मैंने पाकिस्तान में हमारे कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नदीम, उससे बात की, उससे बात हुई, डॉक्टर आरिफ अली साहब से, ऊपर हायर अप से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कुवैत के अंदर अपना काम शुरू करें। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जिनके नज़रियात होते हैं, जो अपनी नज़रियात के पाबंदी करती हैं, और नज़रियात इंसानों के लिए होते हैं, भेड़ बकरियों के लिए नहीं होते। इसलिए पाकिस्तान पीटीआई एक नज़रिया है, और ये नज़रिया तमाम नौजवानों का नज़रिया बन चुका है, और इसका मुजाहरा हालिया दिनों में 30 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का जो लाहौर में जलसा हुआ, उसका मुजाहरा वहाँ पे हो गया। एक बात जो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कुवैत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या काम कर सकते हैं, तो मेरा उनको हमेशा से ये जवाब रहा है कि जितना काम हम कुवैत में रह के पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, शायद हम पाकिस्तान में होते तो ये काम न कर सकते। क्यों? यहाँ पे हमारे पास वो वसाइल भी हैं, वो ज़राए भी हैं, वो मौक़े भी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक इंडिविजुअल को कन्विंस करना है। चूँकि कुवैत के अंदर ज़्यादातर बैचलर्स हैं या सिंगल लोग हैं, और उन लोगों को एक आदमी को कन्विंस करना आसान है बनिस्बत 50 लोगों के जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत इजी टारगेट था, जिसको एज ए चैलेंज हमने इसको एक्सेप्ट किया, और हमने यहाँ पे लोगों को एक को कन्विंस करना शुरू कर दिया। और एक फैमिली पाकिस्तान में, अगर कुवैत के अंदर सपोज 50,000 लोग हैं और यहाँ 50,000 आदमी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये 50,000 फैमिलीज हैं। अगर एक फैमिली का हेड हमारे पास कन्विंस हो जाता है, तो उसके 50 पाकिस्तान के अंदर 50 वोट उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। तहरीक इंसाफ का क्या लाहेअमल है कि वो किस तरह इन हालात को, अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह पाकिस्तान का एक नाम दुनिया में वापस लाएंगे? जी बिल्कुल। दरअसल बहरान आते ही बड़ी कौमों को बड़ा बनाने के लिए आते हैं बहरान। ये उस कौम का फ़र्ज़ है जो उस बहरान में बच जाने वाले लोगों के लिए एक नसीहत होती है। उस बहरान से बच रहने वाले लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत ज़ख़ीरा, ये बहरान जो होते हैं दरअसल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा साथ लेके आते हैं। अब जो अफराद अक्लमंद, बाशऊर और ईमानदार लोग होते हैं, वो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं और उन डिज़ास्टर्स में से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं, और फिर उन मौक़ों को भरपूर तरीके से अप्लाई करके अपनी कौम के लिए रास्ते बनाते हैं और उनके मफाद के लिए काम करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जो सफ़र है ये 15 साल 16 साल पर मुहित है, और यकीनन उसमें एक रब्त है, सिलसिला है, अवाम की तरफ वो आ गए हैं, और यकीनन एक तब्दीली वो पिछले दिनों जो जलसे में आई है, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, हम दुआ करते हैं। गल्फ में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात हाज़िर पर मबनी प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप दियारे गैर में पाकिस्तानियों के कैसे गुजरते शब रोज, वो वॉइस ऑफ ओवरसीज कम्युनिटी, हर जुमेरात रात 12:20 पर और हर जुमा दिन 3:30 पर देख सकेंगे।